Hello students, how are you? As you can see on the screen, the topic is combination of capacitor complex circuits of chapter 2 electrostatic potential and capacitance. So let's discuss this topic in detail. So this is Siddharth. Let's start. Okay. So the topic is combination of capacitors. Okay. So we can combine several capacitors of capacitance C1, C2, C3 and so on, okay, to obtain a system with some effective capacitance, okay. So the effective capacitance depends on the way how you are connecting capacitors in a group, okay. So हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के अरेंजमेंट हैं. एक तो है इसको एक फर्स्ट अरेंजमेंट को हम बोलते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, ओके, सीरीज अरेंजमेंट. सो कैपेसिटर इन सीरीज, ओके. और दूसरे टाइप का अरेंजमेंट जो है वो है कैपेसिटर इन पैरेलल. तो स्टूडेंट, इन अवर अर्लियर वीडियोस वी हैव डिस्कस कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एनर्जी को कैसे स्टोर करता है, कहां स्टोर करता है और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, कैपेसिटेंस क्या होती है कैपेसिटर की, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक जब हम इसको बीच में इंसर्ट करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है. तो ये सारी चीजें हमने अपने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. तो इफ यू वांट टू रिवाइज और इफ यू वांट टू लर्न अगेन, देन यू कैन वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, ओके. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. और न्यूमेरिकल वाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अगर ये चीज तुम्हें क्लियर हो गई, देन यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन combination of capacitors, okay. So let's discuss one by one, okay. So capacitor in series, okay. So here you can see this is first capacitor C1, okay. This is second capacitor and this is third capacitor. So here this capacitor we have connected to this positive part of battery, okay, positive terminal of the battery, and this negative plate of this is connected to the negative plate of this battery, okay. So and you can see why it is in series. So you can see this plate is connected to second plate, positive plate of second plate, okay, and negative of second is connected to third of positive of third and so on. So this combination is called series combination, okay, like this. सो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया कि कैपेसिटर को हम सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे. सिंपल है. अब हमें फाइंड करना है कि टोटल कैपेसिटेंस क्या है इस सर्किट की. सो वी कैन फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ टोटल कैपेसिटेंस बाय कंसीडरिंग द वोल्टेज अक्रॉस द इंडिविजुअल कैपेसिटर. सो व्हाट वी विल डू, बिकॉज दिस इज टोटल potential power supply, okay, V. Now this V is divided among each capacitor, okay, like this. So V1 is across C1, V2 is across C2 and V3 across C3. So if suppose V is 10 volt, then 10 volt is divided in C1, C2 and C3. Maybe combination can be 4 volt, 3 volt and 3 volt, okay. So 10 volt is divided like this in C1, C2, C3. So the voltage across the individual capacitors are, so V1 equal to Q upon C1, V2 equal to Q upon C2 and V3 equal to Q upon C3. और तुम जानते हो कि जो टोटल वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3. अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, अगर 4 हैं तो प्लस V4, अगर n है प्लस डॉट 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 प्लस Vn, okay. So the total voltage is sum of the individual voltages. So V equal to V1 plus V2 plus V3 and so on, okay. Now calling the total capacitance as CS. Why CS? S stands for series capacitance. So that is V equal to Q upon CS equal to V1 plus V2 plus V3. Now you can put value of V1, V2, V3 like this: Q upon C1, Q upon C2 and Q upon C3, and this is Q upon CS. Now you will take Q common, so it will be like this: 1 upon C1 plus 1 upon C2, plus 1 upon C3, okay.
Now this q is cancelled out, so the final expression is 1 upon cs is equal to 1 upon c1 plus 1 upon c2 plus 1 upon c3 and so on 1 upon cn. Okay, so where this dash indicate the expression is valid for any number of capacitor connected in series. So this is overall for the series combination. Now next अभी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के भी, पैरेलल के भी और दोनों के मिक्स भी, ठीक है. सो कैपेसिटर इन पैरेलल डिस्कस करते हैं. तो इधर क्या होगा, इट इज लाइक दिस इज वन कैपेसिटर, दिस इज अनदर कैपेसिटर, दिस इज अनदर कैपेसिटर. ओके, सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल like this, and this is connected to battery like this. Okay, this is one wire. Okay, so C1 C2 C3, this is V. So it's same, both diagrams are same. Okay, so to find the equivalent total capacitance CP, we first note that the voltage across each capacitor is V, so the same as that of source since they are connected directly to it through a conductor. तो स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखना कि अगर कैपेसिटर तुम्हारे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, सेम होता है. ओके, यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, Q1 Q2 Q3. सीरीज वाले में क्या हो रहा था, यहाँ पर पोटेंशियल डिवाइड हो गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. यहाँ पर चार्ज सेम था, Q सेम चार्ज इज फ्लोइंग इन ईच कैपेसिटर, सो दैट इज द डिफरेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन. I am repeating again, in series combination what is same, charge is same. In parallel combination what is same, potential difference is same. So here Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3 and so on. Now Q you can write it CPV if CP is stand for total capacitance for parallel combination. Then you can put Q1 Q2 Q3 C1V, Q1 equal to C1V, Q2 equal to C2V and Q3 equal to C3V. और ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट करके और V कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 और इधर ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये CP इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन. तो कितना इजी है निकालना, डेरिवेशन भी कितना इजी है सीरीज कॉम्बिनेशन का और पैरेलल कॉम्बिनेशन का. क्लियर? So total capacitance in parallel is simply the sum of individual capacitance. अगर 4 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड अगर 3 कैपेसिटर्स हैं, अगर तुम उसको सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करते हो, then the total will be 4 plus 3 plus 2. So total is CP will be 9 microfarad. Okay, so it is as simple as that. Okay, which one? Parallel combination. Series combination का क्या था फॉर्मूला, 1 upon CS equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 like that. Okay, तो ये फॉर्मूला याद रखना है सीरीज का भी और पैरेलल का भी, तभी तुम न्यूमेरिकल कर पाओगे. तो हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं वन बाय वन. ओके, जिसमें कि हमें क्या निकालना है, हर क्वेश्चन में ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. तो उसके लिए स्टूडेंट तुमको पता होना चाहिए कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है, कौन से पैरेलल में है, और तुम इसको सॉल्व करते चले जाओगे स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो मैं एक ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं. तो देखो, ये यहां से चार्ज आया और ये चार्ज डिवाइड हो गया. ठीक है, ये चार्ज जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, तो ये C1 और C2 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, C12. ओके, और तो सीरीज का फॉर्मूला क्या है, 1 upon C12 इक्वल टू 1 upon C1 प्लस 1 upon C2. सो द नेक्स्ट, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसे आएगा, दिस इज C3,
दिस इज C12 एंड दिस इज C4। ये डायग्राम बना। अब here it is divided, so C3 and C2 both will be in parallel, okay, then जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा वो C4 के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, और ये तुम्हारा फाइनली ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो if the complex circuit is given, then you have to divide complex circuit in a step by step in a simple circuit, okay, you have to convert it। तो समझ में आया कैसे कन्वर्ट किया? ओके, अब मैं डिस्कस करता हूं सेकंड क्वेश्चन। देखो, चार्ज इधर आया, ओके, इधर आया, ये इधर डिवाइड हो गया, सो दीज टू विल बी इन पैरेलल। तो इनका एक पैरेलल कैपेसिटेंस आ जाएगा निकल के। फिर ये और ये वाला क्या हो जाएगा, क्योंकि सब में चार्ज क्या जाएगा, सेम जाएगा, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। क्लियर हुआ या नहीं? नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3। तो क्वेश्चन 3 में क्या करेंगे, देखो ये चार्ज यहां से आया, ये डिवाइड हुआ, डिवाइड होते ही ये पैरेलल हो जाएगा, लेकिन पहले सबसे पहले हम इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों तुम्हारे सीरीज में होंगे, और ये 8 माइक्रो फैराड वाले क्या हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो फिर वो सीपी वाला फॉर्मूला लाकर निकाल लेंगे। क्लियर? चलो, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है। क्वेश्चन 4, ये यहाँ गया, डिवाइड हुआ, तो पहले इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा के एक बना लो उसको। क्लियर? ओके, यहाँ गया, डिवाइड हुआ, अब इनका सीरीज में लगा के निकाल लो तीनों का CS। ओके, फिर यहाँ ये डिवाइड हुआ, तो इसको और इसको पैरेलल में ले लो, ओके, एक बना लो, और ये जो पैरेलल में 6 के साथ क्या हो जाएगा, ये वाला सीरीज में हो जाएगा। क्लियर? अब ये सीरीज और ये वाला, ये दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस वाले के साथ किसमें हो जाएगा, सीरीज में, इसको और इस वाले का ये सीरीज में हो जाएंगे। तो कितना मतलब इजी है अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5। तो ये देखो कितना थोड़ा सा, ये दोनों सीरीज और ये तीनों पैरेलल, इनका एक कैपेसिटेंस आ जाएगा निकल के, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, चलो ये कुछ आ गया तुम्हारा C1 मान लो। ओके, C ऐसे रोमन वाले में डालो, C फर्स्ट। ओके, अब यहाँ चलते हैं, तो ये ऐसे गया, ये ऐसे जाके ये ऐसे आ गया, तो ये चारों किस्म हो जाएंगे सीरीज में, सॉरी हाँ सीरीज में हो जाएंगे। तो इसका एक कैपेसिटेंस आ जाएगा निकल के, सबको सीरीज में 1/C1, 1/C6 प्लस 1/C7 प्लस 1/C8 प्लस 1/C9 करके ऐसे ये इनका निकाल लो कॉम्बिनेशन। ओके, इसको क्या नाम दूं, इसको CA मान लो। ओके, ऐसे यहाँ ये चारों किस में हो जाएंगे, उसमें आ जाएंगे सीरीज में। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा CB। अब ये CA और CB पैरेलल में है, तो इनका पैरेलल में करके कैसे निकालेंगे, CAB कैसे निकलेगा, CA प्लस CB। ओके, अब तुम्हारे पास ये पूरा फिगर के वजह से तुम क्या लिख सकते हो, तुम CAB लिख सकते हो, और यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको रिड्यूस कर दिया एक कैपेसिटर में जो कि C फर्स्ट है। अब C फर्स्ट और CAB किस में है, सॉरी C फर्स्ट और CAB किस में है, सीरीज में। तो यहाँ पर सीरीज वाला कॉम्बिनेशन लगा दो, तो तुम्हारा जो CR रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 1/C फर्स्ट प्लस 1/CAB। कितना इजी हो गया है कॉम्प्लेक्स सर्किट। क्लियर हुआ? क्वेश्चन 6 लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या करेंगे हम, ओके, ये यहां से आया, ये डिवाइड हुआ, ये यहाँ आया, यहाँ ये डिवाइड हुआ। ओके, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और वो जो भी इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो इस वाले के साथ किस में हो जाएगा, सीरीज में। ओके,
ऐसे ही ये दोनों सीरीज में, और फिर ये वाला इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो प्लस ये बीच वाला और प्लस इस वाले का, इनका जो रिजल्टेंट आएगा, ये तीनों किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे. क्यों? इट इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. ओके ओके, तो ये वो तीनों पैरेलल में है. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इज, ओके तो इसको हम कैसे करेंगे, ये यहाँ गया डिवाइड हुआ, यहाँ गया. ओके तो पहले तो यहाँ गया, ये डिवाइड हुआ. तो देखो ये दोनों पैरेलल, इनका एक आएगा रिजल्टेंट, वो 3 वाले के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा. ओके ओके, और फिर इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इस वाले के साथ सीरीज में होगा, तो ये एक बन गया. और फिर ये तो इन सब का एक कैपेसिटर बन जाएगा, वो इस वाले के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा. और जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 वाले के साथ क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा. अच्छा, ये तीनों पैरेलल में ऑलरेडी हैं, तो इनका एक आ जाएगा निकल के. और फिर जो ये इसका इन सब का जो एक आया था वो इनके साथ, इन तीनों का जो एक होगा वो इसके साथ क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में हो जाएंगे. तो कितना इजी है, आई होप क्लियर हो गया होगा. लास्ट वाला मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट वाला. तो ये ऐसे गया, तो पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लाके एक कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, वो 3 के साथ सीरीज वाला ऐड कर दिया, और ये वाला भी 3 ऐड कर दिया, क्योंकि ये तीनों क्या है, सीरीज में है. ओके, वो फिर उसका 1 माइक्रो फैरेड के साथ क्या ले लोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लोगे, और फिर उसका जो 1 माइक्रो फैरेड के साथ जो रिजल्टेंट आएगा वो 2 के साथ पैरेलल में होगा. नहीं, एक सेकेंड, ये तो एक ही होगा, नहीं सीरीज में होगा इसके साथ. और इधर ये अलग निकालोगे, ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लाके अलग निकाल लोगे, और फिर इसका और जो इनका सबका आया था एक, वो उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लोगे. तो आई होप चीज क्लियर हो गई होगी. तो अभी मैं और भी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उसके साथ फिर एक अलग मतलब सारे क्वेश्चन फिर दोबारा डिस्कस करेंगे. क्योंकि अभी क्या है कि मैंने तो खाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया, ठीक है, लेकिन अभी क्या होगा, तुमसे पूछेगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या है, C3 पे कितना चार्ज है, एनर्जी कितनी है. तो वो अभी आगे टॉपिक्स आएंगे, तो उसके बाद फिर जब मैं फाइनली न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक लूंगा, तब मैं ये वाले चीजें भी डिस्कस करूंगा. तो अभी मैंने खाली इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिस्कस किया है कि हाउ यू विल ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू सिंपलर सर्किट्स. ओके, तो वो तुमको आना चाहिए कि कैसे तुम्हें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करने हैं, पहचानने हैं. वो अगर क्लियर हो गया, देन यू कैन I mean solve any numerical, okay, complex circuit also. Okay, so ये हमने 7 क्वेश्चन डिस्कस करें. तो अगर कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एरिया. ओके, so that's it. So student, if please have to subscribe and share if you like it. Okay, that's it. Thank you.